Hello everyone. I hope all of you are doing good, and today we are here to discuss the Leetcode Weekly contest 421 which took place last Sunday. So let's start with the very first problem. So the first problem says find the maximum vector score of array, and you are given an integer array nums. The vector score of any array defined is as the product of the LCM and GCD of all elements of that array, and return the maximum vector score of nums after removing at most one element from it. So basically, let's understand what is given in the problem statement. So this is our problem A, and we are given with an array nums of size n, and what we need to calculate is the max score. So basically, score of the array is like the total GCD multiplied by total LCM. LCM. So this is basically the criteria to get the max score of the array. And what we can do is delete at most one element. हम किसी भी एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं according to our choice, and if that GCD and multiplied by that LCM gets out to be more, तो वो हमारा max score हो जाएगा. So we have to identify क्या max score होगा in our given array. So basically first let's understand what is GCD. GCD is nothing but the greatest common divisor. It is the greatest number which divides both A and B if we are taking GCD of two numbers. So GCD of A and B is this, and we can use a simple STL function in C++ to calculate this, and there are many more ways to do in other languages. And for to get the LCM is nothing but lowest common multiple, and this we can get using this GCD only. Basically the LCM of two numbers A and B is nothing but A multiplied by B divided by GCD of them. So we are not gonna get into the proof of this, but ये true होता है, ये use कर सकते हैं to get the LCM and GCD of the array. So basically करना क्या है, हमें जो given array है, first then क्या option हो सकता है. If let's suppose we are given with an array 2 4 8 16, so 2 4 8 16 अगर ये array है तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है. The very first option is इस whole का GCD multiplied by the LCM of it. This is our first option. Second option मेरे पास क्या है, मैं एक एक करके एलिमेंट्स यहाँ से हटाना शुरू करता हूँ. If I remove 2, तो जो इस पार्ट का GCD और LCM होगा, ये मेरा एक पॉसिबल आंसर है. Another thing is मैं 4 को हटा देता हूँ, it will be 2 8 16. This is one possible choice. Another one is removing 8 from this, and the last one is removing 16 from this. And whatever of from these four options, four, or I can say 5 options, the main one is this 2 4 8 16, and the last one would be 4 8 16. So whatever from these 5 options will give me the maximum answer, I'll take it. But इसकी time complexity कितनी हुई to compute this? So very first thing is हमें total का time traverse करना पड़ेगा. So time complexity to calculate score of array, which is nothing but taking out the GCD and LCM, is order of n. हम एक बार traverse करके GCD and LCM calculate कर सकते हैं, and this GCD and LCM functions works in log n.
सो वी कैन से कि ये n log n है, बिकॉज अगर हम n टाइम्स log n कॉल भी करेंगे तो दैट विल गो अप टू n log n एट मैक्स। एंड अगर मैं एक एक एलिमेंट रिमूव करके देखना चाहूँ, सो व्हाट आई कैन डू कि मैं एक एलिमेंट को फिक्स कर सकता हूँ, एंड आफ्टर फिक्सिंग इट मैं पूरी एरे को ट्रैवर्स करूंगा एंड इस पर्टिकुलर इंडेक्स को इंक्लूड नहीं कराऊंगा अपने आंसर में, एंड विल इंक्लूड द रेस्ट ऑफ द इंडेक्सेस। तो उस केस में मेरी ट्रैवर्सल की और आई कैन से डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? आई हैव टू फिक्स एवरी एलिमेंट एंड कंसिडर इट एज डिलीटेड। इस केस में हमारी इस चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ एन। एंड सिमिलरली टू कंप्यूट द स्कोर मुझे दोबारा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो माय टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्न्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ n multiplied by order of n log n. So worst case it will go up to order of n square log n. क्या ये मेरे constraints के अंदर fit होगी? Let's see. Constraints here are up till 100. So यार 100 में तो कोई issue है ही नहीं, because 10 to the power 2 का square is nothing but 10 to the power 4। अगर इसमें log n factor भी add होता है तो that will for sure work। तो इसमें brute solution work कर सकता है। So let's see the code for this। So basically here are two functions which are just calculating GCD and LCM। So this is an algorithm to calculate GCD, or you can also use underscore underscore GCD function also। So this is basically an edge case कि जब n1 हो तो आप जो आपके परसेंट एक्सपेरिमेंट पड़ा है वही LCM है वही GCD है, just return it। Otherwise what we can do is we can calculate total LCM and GCD। This is total LCM and GCD, ये हम कंप्यूट कर सकते हैं for the whole array। एंड यहाँ हम क्या करेंगे? Fix every index and treat it as deleted। तो ये हम यहाँ ये करने वाले हैं। एंड अगेन एक और लूप रन करेंगे ऑफ j, एंड जब भी वो i j के इक्वल होगा तो बेसिकली दिस इज द डिलीटेड एलिमेंट, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अदरवाइज हम GCD एंड LCM लेते हुए चलेंगे। एंड वंस वी आर आउट ऑफ दिस लूप तो हम GCD वाला LCM को कंप्यूट करेंगे एज अ स्कोर। दिस इज बेसिकली द स्कोर ऑफ द एरे। वी कैन रीनेम दिस टर्म एज द स्कोर ऑफ द एरे एंड विल मैक्स इट विद आवर आंसर जो कि हमने इनिशियली कैलकुलेट करा था द टोटल LCM एंड GCD के थ्रू। एंड आफ्टर computing this we can return this answer from our function। So this was the code for problem A। I hope you guys understood it। Let's move on to the next problem। So this is our next problem। Total characters in string after transformation। So you are given a string s and an integer t representing the number of transformations performed in one operation। Every character in s is replaced by according to the following rules कि if characters is z तो हमें a b introduce कराना है instead of that, otherwise replace it with the next character। and आंसर बड़ा हो सकता है तो we have to take modulus with this number। so let's see some test cases। let's see the first one, a b c double y and t is equal to 2। so the first test case is, this is problem number 2। just a second, it's not perfect। so this is our problem 2 and the first test case is, it's working। so the test case is a b c y y and t2। so we are given the string s which is initially a b c y y and t is equal to 2।
So the rule is whenever we encounter Z, we are gonna replace it with AB. Otherwise, if it's C, just replace it with C plus 1. That's it. So हमें टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं इसके ऊपर? दो. अगर हम एक करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, so after one transformation, this array will look like something into this कि A हो जाएगा B, B will go to C, C will go to D, Y will go to Z, and this will also go to Z. So this will be the array after one transformation. If we again do one more transformation, so my array will look like this. Here B becomes C, C becomes D, D becomes E, and Z के लिए हमें क्या करना था? We have to replace it with AB. एक Z के लिए एक AB, दूसरे Z के लिए दूसरा AB. So the final array will be this. Sorry, string will be this C D E A B A B. Let's see. Final be this C D E A B A B, and which has 7 characters. So हमें इसकी length return करनी है. We don't really have to return the array, and हमें इसकी length return करनी. तो इतना ही बहुत था to get the solution of this problem कि उन्होंने हमसे string मांगी ही नहीं है. We don't have to return the string. या फिर इसमें ये भी नहीं बताना हमें कि क्या ऑर्डर होगा, कोई पोजीशन का ध्यान रखना नहीं. We don't have to return string. हमें सिर्फ बताना है लेंथ. तो यहीं से हटने लग जाना चाहिए था कि अगर हम स्ट्रिंग कंप्यूट करने जाएंगे, सो होगा क्या. तो कंस्ट्रेंट्स एक बार देख लेते हैं. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज अप टू 10 to the power 5. कि जो n हो सकता है that can go up to 10 to the power 5. So let me give you a worst case. Worst case में क्या हो सकता है? There is a string जिसकी लेंथ है बहुत बड़ी, अप टू 10 to the power 5, एंड इसमें ना सारे कैरेक्टर जेड है. जेड 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 जेड. अगर हम, और ट्रांसफॉर्मेशन कितने हो सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कैन ऑल्सो गो अप टू 10 to the power 5. मैं कह रहा हूँ ये भी इतनी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी इतने हैं. हर जेड को ए बी से रिप्लेस करने लग गए, तो द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n square. N is for traversing the array in every transformation, and T is the number of transformation. Plus स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर 10 की पावर 5 की एरे है, सॉरी स्ट्रिंग है, तो इनवर्स केस अगर 10 की पावर हमारे 5 ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो n स्क्वायर ना भी जाए, बट इट विल गो समथिंग नियरली अबाउट दिस. 10 की पावर 5 मतलब 10 की पावर 10 की स्ट्रिंग. दैट वुड नॉट बी समथिंग इजी टू कंप्यूट. तो ये तो समझ में आ रहा है कि हमें स्ट्रिंग के साथ डील करना ही नहीं है. वी हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू कि हम दोबारा से स्ट्रिंग को रिकम्प्यूट करें एंड विल टेक द स्ट्रिंग कि हमारी स्ट्रिंग है एंड बेस्ड ऑन दैट हम अपना लेंथ पता है. हमें मतलब है सिर्फ लेंथ से. अगर हम सिर्फ लेंथ की बात करें ऑफ अ स्ट्रिंग, तो क्या डिनोट करती है? लेंथ इज नथिंग बट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सो एनी हाउ मैं ये आइडेंटिफाई कर लूं कि मेरे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने वाले हैं आफ्टर टी ऑपरेशंस. मेरा काम डन है, बट अब ये करेंगे कैसे? सो बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते कितने हैं? यहाँ उन्होंने बोला है कि S only consists of लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. मैं बोल रहा हूँ कि वर्स्ट केस अगर मैं सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लूँ. फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है यार? देयर आर टोटल A B up to Z. देयर आर टोटल 26 कैरेक्टर्स. इससे ज्यादा तो अभी होंगे नहीं. वर्स्ट केस में इनके काउंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट द टोटल कैरेक्टर्स विल बी 26 इटसेल्फ. इससे ज्यादा होंगे नहीं. एंड अगर मैं एनी हाउ आफ्टर टी ऑपरेशंस ये फ्रीक्वेंसी पता लगा लूं ऑफ एवरी कैर, तो क्या मैं टोटल साइज बता सकता हूँ स्ट्रिंग का अपनी? क्या मैं इस टोटल साइज को कंप्यूट कर सकता हूँ? लेट्स सी कि अगर मुझे पता है a इज अकरिंग, अगर हम इसी का एग्जांपल लें, a is occurring twice, b twice, c once, d once, e once. So b is occurring twice, c is occurring once, d is occurring once, and e also. तो
अगर मुझे ये पता है, क्या मैं इससे टोटल लेंथ बता सकता हूँ अपने स्ट्रिंग की क्या होने वाली है? बिल्कुल। आई जस्ट हैव टू सम दीज फ्रीक्वेंसीज कि यार 2, 2, 4, 5, 6 एंड 7 लेंथ होने वाली है 7, which was the answer for this case. बट क्या ये अप्रोच हर जगह वर्क करेगी? लेट्स सी यार, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का काउंट रख के हमारा काम हो जाएगा? लेट्स सी एग्जांपल टू a z b k and t is equal to 1. So my string is a z d k and my t is equal to 1. So अभी हमारी इनिशियली फ्रीक्वेंसी क्या है? इनिशियली यार फ्रीक्वेंसी इज a is occurring once, b is occurring once, k is occurring once and z is also occurring once. तो अभी मैं सिर्फ इतना ही कंप्यूट कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट कंप्यूटिंग कि बाकी कैरेक्टर्स कितने हैं, वो सारे जीरो हो रहे हैं. आफ्टर वन ट्रांसफॉर्मेशन क्या चेंजेस आएंगे? तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि व्हेनेवर यू एनकाउंटर अ जेड, उसको ए बी से रिप्लेस कर देना. तो मेजर तो हमारे लिए जिसको टैकल करना है वो यही है. तो मैं इनिशियली जेड को अपडेट कर रहा हूँ कि भाई ए मेरा 1 आ गया एंड बी मेरा 1 आ गया. आई हैव डन माय जॉब फॉर दिस जेड. ऑलराइट. के से क्या बनेगा? आई जे के एल. आई विल गेट एल एज 1. दिस बी विल गेट कन्वर्टेड इनटू सी. सी ए क्या है? दिस ए इज गेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ बी. यार बी की फ्रीक्वेंसी विल गेट अपडेटेड एंड हो जाएगी 2. सो अगर मैं इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करूं, so will I get my answer? Let's see. My sum is coming up to 5. क्या इसका 5 है? बिल्कुल. तो एट लास्ट हमें चाहिए क्या? वी जस्ट हैव टू कंप्यूट कि यार कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स अकर हो रहा है इन द फाइनल स्ट्रिंग, इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग कि यार पूरी स्ट्रिंग कैसे दिखेगी. हमें उसकी नीड ही नहीं है. वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने यहाँ देख लिया. वी विल बी टेकिंग अ प्रीवियस फ्रीक्वेंसी which is the frequency of previous state, and we will compute a new frequency. This is the new frequency. And after we are done, अगर मान लो let's suppose I have another number of operation की यार t 2 है and अभी एक और transformation होना है इसके ऊपर. Basically this will be my previous frequency in that case, and मैं इससे आगे मूव कर जाऊंगा and similarly new frequency calculate करता जाऊंगा. तो हमेशा मुझे करना क्या है? After in every operation मेरे को अपनी एक न्यू फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है बेस्ड ऑन माय प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज एंड उसको वापस रिप्लेस कर देना. सो बेसिकली दिस इज माय प्रीवियस फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मैंने अरे सेटअप करी बाय ट्रैवर्सिंग ऑन स्ट्रिंग एंड सबका साइज ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले ली बाय. ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एवरी कैरेक्टर में सही माइनस करके हम उसको एक इंडेक्सिंग पे ले आते हैं फ्रॉम बिटवीन 0 to 26. सो हियर जीरो इंडेक्स इज my zero index is representing A. Similarly, 1 is representing B and so on. This is the basic frequency computing thing. New frequency भी same हमने बनाई and for every character, for every operation हम क्या करेंगे? If it is equal to Z. This is basically कि यार ये ना this is Z. ये Z है. अगर ये character Z है तो हमें क्या करना है? जो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है उसमें प्रीवियस ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है उसमें ऐड कर लेनी है कि भाई जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसमें प्लस कर लो, कितनी टाइम्स जेड है उतने टाइम्स. सिमिलरली फॉर बी के लिए कर लो. एंड ये दोनों कहाँ एग्जिस्ट करने वाले हैं? ऑन जीरो एंड फर्स्ट इंडेक्स. इसलिए हमने ये करा. सिमिलरली अगर उसके अलावा कोई भी और कैरेक्टर एग्जिस्ट करता तो उसमें जस्ट हमें नेक्स्ट एलिमेंट को +1 करना है. दैट विल बी एट पोजिशन C+1. तो ये तो बहुत सिंपल ऑपरेशन से. एंड आफ्टर दैट हम दोनों फ्रीक्वेंसी एरेज को स्वैप कर देंगे आपस में. यू कैन यूज दिस स्वैप फंक्शन आल्सो कि इसके अंदर दोनों को पास कर दो दैट फ्रीक्वेंसी कॉमा न्यू फ्रीक्वेंसी. बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसे यूज करा करो बिकॉज द दिस टेक्स सम लेसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इसके एक्सप्लेनेशन सीपी एल्गोरिथम पे अवेलेबल है. व्हाई दैट सो? तो ये यूज करना इज बेटर देन दिस थिंग. एंड उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है. विल ट्रेवर्स ऑन आवर फ्रीक्वेंसी मैप एंड उसमें से हम सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कैलकुलेट कर लेंगे. एंड मॉड ऐड इज जस्ट
function which is adding two numbers by taking modulus, क्योंकि यहाँ में बोला हुआ था क्वेश्चन में that you have to take care of this modulus thing. So this was the code for problem B. Let's move on to the next problem. And ये problem यार काफी हद तक ना similar थी from some previous bi-weekly contest, I guess last to last or previous than that. And उसका D था which was somehow similarly to this problem जहाँ पे 3D DP थी and one is index, two are the values की कौन कौन सी अकर हो सकती है, and हम partition कर रहे थे basically in that question. यहाँ question थोड़ा different है but the states and the idea behind that problem is totally same. So here we are given that you are given an integer array nums and your task is to find the number of pairs of non-empty subsequences, sequence 1 and sequence 2 of nums that satisfy the following conditions: that subsequence are disjoint, मतलब dissimilar elements होने चाहिए, similar elements नहीं चलेंगे, and the GCD of elements of sequence 1 and the is equal to GCD of elements of sequence 2. So हमें ऐसे टोटल कितने पेयर्स हो सकते हैं सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 के, वो बताना है. सो लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू यू कि क्या क्या होगा प्रॉब्लम के अंदर. सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम सी, so basically we are given array nums of size n. Similarly, बट हमें बताना क्या है, हमें आंसर करना है कि यार नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2 कितने होंगे. एंड सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2 क्या चीज़ है, दे आर बेसिकली इसके सब सीक्वेंस हैं कि यार इफ देयर इज अ नम्स एरे, उसके दो सब सीक्वेंस बनाओ. हमें दो सब सीक्वेंस क्रिएट करने हैं. सब सीक्वेंस इज लाइक दैट कि यार अगर ये मल्टीपल इंडेक्स एलिमेंट्स हैं तो हम कोई भी दो एलिमेंट्स पिक करके इस सब सीक्वेंस में डाल सकते हैं एंड सिमिलरली इस सब सीक्वेंस में डाल सकते हैं. तो हमारे दो सब सीक्वेंस बनेंगे विच इज सब 1 एंड सब 2, और यू कैन से सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2. सेम नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन कि सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2 दो सब सीक्वेंस बनेंगे एंड दे शुड बी डिसजॉइंट कि यार कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए विद नो कॉमन एलिमेंट्स. एक बारी में एक एलिमेंट एक ही सब सीक्वेंस के अंदर जाएगा एंड कैन नॉट गो टू बोथ ऑफ देम, एंड इन दोनों का जीसीडी सेम आना चाहिए. ऐसा कुछ है. तो काइंड ऑफ हमें ये समझ नहीं आ रहा कि सबसे इफ फॉर एनी इंडेक्स मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. आइदर my this index can go into subsequence 1 or my this index can go into subsequence 2. तो क्या यहीं से आइडिया लग जाता कि ये प्रॉब्लम ग्रेडीली तो सॉल्व नहीं हो सकता. फॉर श्योर ग्रेडीली वर्क नहीं करेगा क्योंकि मुझे नहीं पता बाय पुटिंग दिस फर्स्ट इंडेक्स इनटू दिस और इनटू दिस मुझसे कौन से आंसर मिलेगा, एंड मिलेगा भी तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाएंगे. आई कैन नॉट कंप्यूट ग्रेडीली. तो इसके लिए हमेशा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भाई जहाँ ग्रीडी फेल हो जाए थिंक ऑफ समथिंग डीपी. एंड मैं काफ़ी टाइम से अब बॉटम ऑफ डीपी ट्राई कर रहा हूँ टू सॉल्व. एंड उसमें बॉटम ऑफ यार बहुत सिंपल लॉजिक है. जस्ट थिंक ऑफ अ स्टेट, क्या वो स्टेट सफिशिएंट है टू कंप्यूट all of the answers in all of the scenarios. अगर yes, तो then think of the transition and you are done with the question. So basically यहाँ पर अगर हम ऐसी कोई स्टेट स्टोर करा लें, आई गेस स्टेट देख के ही आइडिया लग जाएगा आपको कि हाँ यार वी आर गुड टू गो विद द क्वेश्चन कि दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ वेज to assign the first I elements such that sequence 1 has
GCD as G1 and sequence 2 as GCD G2। अगर इस तरीके से हम कुछ स्टोर करा लें तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है कि मेरे लेट्स सपोज जितने भी एलिमेंट्स हैं, इफ देयर आर टोटल n elements in my array, तो क्या पॉसिबिलिटी है इसके लिए? either it can go to sequence 1 or it can go to sequence 2। similarly for this element sequence 1 sequence 2। अब होगा क्या? after getting into sequence 1 and sequence 2, ये कुछ वैल्यूज ले लेंगे। my sequence 1 can take some value, let's suppose this, and this can also take some value this, बट यहाँ हो सकता है कुछ और भी वैल्यूज आए। बट यहाँ तो लेट सपोज अभी सिंगल एलिमेंट है, बट आफ्टर 2 एलिमेंट्स यहाँ आने के बाद दिस इज बेसिकली अ सिंगल स्टेट, ये एक ही स्टेट का काम है। यहाँ G1 स्टोर करा रहे हैं, यहाँ G2 स्टोर करा रहे हैं। मैं थोड़ा और क्लियरली इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली फॉर एवरी इंडेक्स I हमारी स्टेट को जैसी दिखेगी, देयर विल बी 2 सेपरेट थिंग्स, दिस इज G1, दिस इज G2। तो हम यहाँ स्टोर करने वाले हैं कि इंडेक्स 1 तक G1 0 एंड G2 0 वाले कितने वो हैं। सो नॉट लाइक दिस कि हाँ इंडेक्सेस होंगे बेसिकली 0 1 2 3 सो ऑन, कि 0 वाले कितने बन रहे हैं 1, ये कितना बन रहा है 1, 1 वाले कितने बन रहे हैं 1, ये बन रहा है 0 एंड सो ऑन, कि यार GCD दिस वैल्यू के साथ यहाँ तक सीक्वेंस 1 के कितने पेयर मतलब ऑप्शंस बन रहे हैं, सिमिलरली सीक्वेंस 2 के कितने ऑप्शंस बन रहे हैं, एंड GCD की वैल्यू कितनी हो सकती है हमारी मैक्सिमम। GCD is always a reducing function। GCD एक reducing method है कि जितनी वैल्यूज होंगी even if they are equal, if A is equal to B, in that case my GCD will be A, otherwise वो हमेशा less than A होगा and at most it will go up to 0। तो मेरा GCD जो है वो इसी रेंज में लाई करने वाला है। my GCD will lie in this range। इसकी रेंज चेक करें अगर हम, if we check the range of this it will go up to 200। तो ये हमें पता है कि यार ये GCD ना 200 हो सकते हैं एट मैक्स। तो मैं क्या ये स्टेट नहीं स्टोर करा सकता कि इन 0 से लेकर के 200 GCD ith इंडेक्स तक G1 के कितने बन रहे हैं, सिमिलरली G2 के कितने बन रहे हैं, एंड अगर हमने कोई ऐसी स्टेट स्टोर करा ली तो माय फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी नथिंग बट dp of n, I would say not G1 G2, in this case GG। basically this is or I can say क्या टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, assign n elements with GCD of 1 and GCD of sequence 2। यही तो हमें चाहिए कि n एलिमेंट्स असाइन करके GCD 1 के सिमिलर GCD 2 सॉरी सीक्वेंस 1 का GCD सीक्वेंस 2 के GCD के इक्वल कितनी बार आ रहा है, यही हमें चाहिए। तो क्या हमारा यही फाइनल आंसर नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा। अब इसकी ट्रांजिशन सोचनी पड़ेगी कि यार एक स्टेट दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे है। सो ट्रांजिशन बहुत सिंपल होती है इफ यू आर गुड विद योर स्टेट्स। तो अगर हम लेट्स सपोज एक इंडेक्स पे खड़े हैं I with GCD 1 and GCD 2, हो क्या सकता है एक नया एलिमेंट आया A of I आने के बाद GCD 1 में डालते हैं अगर हम, तो टोटल देयर आर 3 ऑप्शंस। मैं बता देता हूँ कौन कौन से, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि हर इंडेक्स को हम डालेंगे किसी ना किसी सीक्वेंस के अंदर, क्योंकि सब सीक्वेंस की बात हो रही है। 3 पॉइंट्स नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? पहला, टू नॉट पुट इनटू एनी सीक्वेंस, किसी में भी नहीं जा रहा है।
first option is put into sequence 1, similarly sequence 2. ये तीन ऑप्शन है हमारे पास. अगर हम इसको किसी में भी नहीं डालें, अगर हम इनको ऑप्शन वाइज चलें कि ऑप्शन 1 किसी में भी नहीं डालना, तो होगा क्या, जो इस स्टेट पे आंसर है नेक्स्ट स्टेट पर भी वही सेम चला जाएगा विद नो चेंजेस, कोई चेंज आएगा ही नहीं यार. बट व्हाट इफ मैं इसको सीक्वेंस 1 में डालता हूँ, तो सीक्वेंस 1 का जीसीडी चेंज हो जाएगा. उस केस में क्या होगा, मेरा एक न्यू जीसीडी बनेगा. दैट वुड बी नथिंग बट अभी तक जो भी जीसीडी था, कॉमा सॉरी, अभी तक जो भी जीसीडी था that would get GCD with this current value, and ये मेरा new GCD बनेगा, and this new GCD is for sequence 1. So state कौन सी होगी, my state would be dp of I plus 1, this new GCD and G2. G2 unchanged है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो सीक्वेंस 1 के अंदर गया एंड नॉट इनटू सीक्वेंस 2, वो अनचेंज रहेगा. एंड ये स्टेट सिर्फ ऐसे सिर्फ जीवन वाली ही क्यों अपडेट होगी, बिकॉज उन्होंने बोला था डिसजॉइंट होने चाहिए एंड सेम टाइम पर वो दोनों में नहीं जाएगा, तो वो सिर्फ जीवन में गया. सिमिलरली फॉर ऑप्शन 3 यही सेम प्रोसेस होगा. वी विल कंप्यूट आवर न्यू जीसीडी बट दिस टाइम with G2, that G2 comma AI, and my state that will be updated is I plus 1. Oh, this will be G1 itself, and ये हो जाएगी न्यू जीसीडी. ये हमारी जो स्टेट्स हैं वो अपडेट होंगी एंड ये हमेशा प्रीवियस स्टेट से ऐड हो जाएंगी. So basically this state will get the sum of previous state, and for everything this is my previous state. This मैं हर इंडेक्स पे खड़े होकर अपनी नेक्स्ट स्टेट को अपडेट करने वाला हूँ. सो एट लास्ट हमें पता है कि हमारा टोटल आंसर जो होगा दैट विल बी सम ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये g की वैल्यूज कैन लाई इन द रेंज 0 to 200, तो मैं इन सब का सम ले लूंगा एंड दैट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जितने बन सकते हैं सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2 के. अब इसमें बेस के सोचने वाली बात क्या है, वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारा बेस केस क्या होगा इसमें. दैट वुड बी assigning and no element such that their GCD remains same. So कितने ways हैं, there are total one way. So this was the problem statement, कैसे उसको approach करना है, how we'll think of a state and transitions कैसे उसकी derive करेंगे, and code देखोगे इसका तो that was pretty straightforward. So this was the code for this problem. ग्लोबल डीपली इनिशियलाइज कर रखी है विद 210 एलिमेंट्स, बिकॉज स्टेट टोटल एट मोस्ट 200 एलिमेंट्स. सो ये हमारी स्टेट है, दैट नंबर ऑफ वेज टू असाइन द फर्स्ट एलिमेंट्स एट दैट जीसीडी 1 एंड जीसीडी 2 सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2 को डिनोट करेंगे. दिस इज आवर बेस केस. फिर हमने हर एलिमेंट पर ट्रैवर्स करा. दीज आर द टू ऑप्शंस फॉर जीसीडी, दोनों में ट्रैवर्स करा. एंड अगर जीसीडी 0 है तो आगे वाली वैल्यूज भी 0 आने वाली हैं, सो देयर इज नो नीड टू कंप्यूट एनीथिंग, चले जाओ आगे. वरना पहला ऑप्शन हमारा क्या था, असाइन टू नाइदर ऑफ सीक्वेंस. सो जो डीपी ऑफ I plus 1 है वो अपडेट होगा विद सेम वैल्यू ऑफ दिस करंट स्टेट एंड वी आर टेकिंग मॉड्यूलस हियर. ऑप्शन 2 क्या है, सीक्वेंस 1 को असाइन कर दो. ऑप्शन 2 है सीक्वेंस 1 को असाइन कर दो. तो न्यू जीसीडी कंप्यूट करा. अगर G1 0 नहीं है तभी हम जीसीडी ले रहे हैं, अदरवाइज वो 0 आ जाएगा, तो कोई सीन नहीं बनता उसका. The better thing is हम यहाँ से एक नया सीक्वेंस स्टार्ट कर दें. So dp of I plus 1 अपडेट हो रही है with our current state. Similarly if we are assigning to sequence 2 तो new GCD अपडेट हो जाएगा with G2 value and हम उसकी स्टेट को अपडेट कर देंगे. After computing our dp table हमें कुछ भी नहीं करना यार, we are iterating on all the values and हम उन सबका सम ले लेंगे with this state कि हमने n एलिमेंट्स असाइन कर रखे हैं एंड विद सेम जीसीडी जी. ऐसे कितने
ऑप्शंस बनते हैं हमारे पास, हम उन सबका सम ले लेंगे एंड दैट वुड बी द आंसर जो हमें रिटर्न करना होगा फ्रॉम दिस फंक्शन. So this was the code for problem C. Let's move on to the last problem. It says total characters in string after transformation 2. तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था to think of some solution and इतना easy तो नहीं था खैर ये क्वेश्चन, बट काफी लोगों ने सॉल्व कर दिया ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करें तो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड इंटीजर टी. मतलब ये काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है बट सम साइड चेंजेस. सो चेंजेस मैं बता देता हूँ. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट इट इट जेड फॉर एग्जांपल इफ एस आई इज इक्वल टू वाई एंड एम सू, तो वो रैप अप कर जाएगा. ऑलराइट. So basically this is a updated version of problem 2 but थोड़ा सा अपडेशन ज़्यादा है which is कि यार ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको करने हैं but not a single update से काम नहीं चलेगा. So you will be given a string. Similarly you will be given a t, the number of transformations that you need to do, and there will be an array nums which is of size 26 एंड यहाँ पर हर जगह वैल्यू होगी विद सम वैल्यूज. तो होगा क्या, इन एवरी ऑपरेशन इफ देयर इज एन वैल्यू ए सी डी, तो हम इस इंडेक्स को लेंगे. यहाँ पे वैल्यू क्या है ए. फॉर दिस कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा 0th इंडेक्स. यहाँ पर जितनी भी वैल्यू पड़ी है हम इसको साइक्लिकली उतनी और आगे वाली वैल्यूज पे शिफ्ट कर लेंगे which will be b in this case. for c यहाँ पर क्या पड़ा है a b c का इंडेक्स ये है 2, तो हम इसको नेक्स्ट 2 वैल्यूज पे शिफ्ट करेंगे which will be c के बाद d and e, तो ये इस पे रिप्लेस हो जाएगा. so on a b c के बाद d, d के इंडेक्स पे क्या है 3, so it will be replaced by d e f and g. 3 वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हैं उतनी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज एंड डी से आगे वाली कॉन्जिक्यूटिव्स. और अगर इफ इन केस z आ जाता है तो हम z के बाद रैप करके वापस से a पे आ जाएंगे. दिस वाज द सेकंड स्टेटमेंट सी. सो एट द एंड हमें ये बताना है कि आफ्टर ट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हमारी जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी. आफ्टर डूइंग क्वेश्चन 2 ये तो क्लियर था, वी डोंट हैव टू कंप्यूट दिस थिंग अगेन. हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी से खेलना है. अब फ्रीक्वेंसी से खेलना कैसे है, क्योंकि यहाँ होगा क्या, इवन आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग हमारी अगर हम वही सेम अप्रोच यूज करेंगे तो वो क्यों नहीं वर्क करेगी. बिकॉज द थिंग इज आफ्टर एवरी अपडेट हमारी नम्स ऑफ आई की वैल्यू बड़ी हो सकती है. लेट्स सी अगर ये, क्योंकि होगा क्या, वी नो देयर आर 26 कैरेक्टर्स, दिस इज फॉर श्योर. अब लेट्स सपोज देयर आर हमें कर क्या रहे थे हम, वी वर ट्रैवर्सिंग ऑन एवरी basically operation. first thing that we are doing for every operation, ये हम अगर order wise लिखें for every operation हम क्या कर रहे थे, we were updating frequency of every character. एंड ये हमारा टोटल टाइम कितना ले रही थी 26 इनटू में 1 बिकॉज ऑफ हमें बस नेक्स्ट कैरेक्टर को अपडेट करना होता था. सो दिस वाज द अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सी. ये हमारे सॉरी प्रॉब्लम बी, ये हमने अपने बी वाले सॉल्यूशन में यूज करी थी. बट यहाँ क्यों नहीं वर्क करेगी, क्योंकि इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही थी. दिस वाज फॉर ऑपरेशंस, दिस वाज फॉर एवरी कैरेक्टर and this was update. So earlier the time complexity was t into 26 into 1, but यहाँ क्यों नहीं वर्क करेगी. so if we see कि यार t कितना है 10 to the power 5,
सॉरी 10 टू द पावर 9 एंड लेंथ कितनी है 10 टू द पावर 5. लेंथ से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दैट इज नॉट गेटिंग इनटू आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. बट ये 10 टू द पावर 9 है एक चीज. दिस इज 26 सेकंड थिंग एंड nums of I is 25. तो ये भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा. बट द थिंग दैट इज गेटिंग इनटू आवर हेड इज दिस, क्योंकि 10 टू द पावर 9 ऑपरेशंस तो हम किसी भी कीमत पर ट्रैवर्स करके नहीं कर सकते. तो द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड कि यार हम क्या इसके अंदर किसी भी तरीके से कुछ ऐसा मैथमेटिकल थिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन. यहाँ हम क्या करते हैं कि जनरली एरेज वगैरह में अगर इफ एन एरे इज getting updated multiple times based on a particular pattern, तो हम एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. And we know that this operation will work for let's say m times, so we'll just take the power of this, and for this we use binary exponentiation. And after this we get here from initial state to the final state total kitne the way how this thing will change from initial state to the final state. तो ये हमें चेंजेस मिल जाते हैं बेस्ड ऑन हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो इसके अंदर कितना टाइम लगेगा इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग ऑल द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, अगर हम पावर लेते हैं यूजिंग बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, तो दैट वर्क्स इन log ऑफ n. सो 10 टू द पावर 9 को अगर हम log ऑफ 10 टू द पावर 9 कंसीडर करें एंड आफ्टर दैट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है 26 into 25 in worst case. So this will work for sure, easily will work. क्या अगर हम कुछ ऐसा कंप्यूट कर लेते हैं क्या हमारे लिए आंसर निकालना इजी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना है कि लेट्स से डी कि हम फ्रॉम सी टू कैरेक्टर डी आ पाते हैं या नहीं इन वन स्टेप. बस इतना बताना है. क्या मैं फ्रॉम सी टू डी आ सकता हूँ इन वन स्टेप और नॉट, ये बताना है. इफ यस जस्ट पुट अ वन देयर, अगर नहीं आ सकता तो डोंट डू एनीथिंग. उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है. वी जस्ट हैव टू टेक टी टाइम्स पावर ऑफ दिस मैट्रिक्स. यस. उसके बाद होगा क्या, हमारे टी मैट्रिक्स के अंदर डिनोट करेगा कि यार इन फाइनल स्टेट ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जो सी से डी फॉर्म में जा चुके हैं. ये हमारी फाइनल स्टेट डिनोट करेगी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो अब हमें पता है इनिशियली अगर मेरे पास सी कितना था, इनिशियली इफ आई हैव सी लेट्स सपोज एन, तो माय ट्रांसपोज ऑफ डी सी इनटू एन, सॉरी नॉट एम, इन ओके कहाँ चला गया, डी सी इनटू एन is the total number of value that I have for particular frequency. तो इन सब का अगर मैं सम ले लेता हूँ that would be my length of the array. बस using this transpose transform thing and matrix exponentiation हमारा काम काफी इजी हो जाएगा. So if we see the code for this, code was pretty straightforward और I guess काफी लोगों ने सिमिलर ही चीजें यूज करी हैं. नथिंग बेटर देन दिस. यहाँ हमने एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करा. सो फॉर दिस
एनी कैरेक्टर इन माय एस, मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो उसकी नम्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी आगे टाइम शिफ्ट होगी, दैट आई नो कि यार फॉर एवरी कैरेक्टर लेट्स से ए, अगर वो नम्स ऑफ आई की वैल्यू 2 है तो मैं बी एंड सी पर जाऊंगा। सिमिलरली तो मैंने डी निकाला है कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता है एंड उन सबको ट्रांसपोज में 1 कर दिया। फिर हमने इसकी पावर निकाली है ट्रांसपोज की टी, एंड आफ्टर दैट वी हैड कंप्यूटेड आवर फ्रीक्वेंसी, एंड ये हमने देखा कि भाई फॉर एवरी वैल्यू इन आवर ट्रांसपोज दिस इज माय थिंग कि यार डीपी ऑफ आई इज, ये बेसिकली हम सम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टू गेट दिस थिंग कि यार एवरी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, ये हम अपडेशन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने उसका जो सिंपल सम करा एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। I hope you guys enjoyed this and thank you so much for joining.